सभी का स्वागत फिर से आज की ज्योमेट्री सेशन में। तो पिछला वीडियो हमने वहां पे स्टॉप कर दिया था कि वी हैड डिस्कसिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। तो हम एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट का डिस्टेंस किस तरह से फाइंड किया जाता है वो देख रहे थे, जिसमें पहले दो पॉसिबिलिटीज हमने सॉल्व कर लिए, व्हाट हैपन और हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इफ दे आर लाइज ऑन द एनी वन ऑफ द एक्सिस। ये पहला केस था। And the second case, what happened? How to find the distance between two distinct points if the line segment joining these two points is parallel to the any one of the axis, x-axis or y-axis। तो इन दोनों केसेस में हमने देखा है कि हम उनका डिस्टेंस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। If x2 is greater than x1 or y2 is greater than y1, then we know that in the both of the cases, distance of those two points is equal to the x2 minus x1 or y2 minus y1। तो इसी कंसेप्ट को अब आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि थर्ड पॉसिबिलिटी भी है उसमें, जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं, और ये थर्ड पॉसिबिलिटी इस तरह से भी लिखी जा सकती है, when the segment joining two given points is not parallel to any one of the axis। अभी तक आपने देखा था या तो a और b x एक्सिस पे या फिर y एक्सिस पे थे। दूसरे केस में देखा था सेगमेंट AB पैरेलल टू द x एक्सिस और सेगमेंट AB में भी पैरेलल टू द y एक्सिस। अब तीसरे में हम यहां पर नोटिस कर सकते हैं नाउ AB is not parallel to the x axis as well as the y axis। It means this segment AB is not parallel to the any one of the axis, and at this moment or in such condition we have to find out the distance AB or the distance between two points AB by the distance formula, or that is called a distance formula। उसी को हम distance formula कहते हैं। इसका मतलब this is the derivation of distance formula। तो distance formula का derivation देखते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो we have the 2 points, point A and point B। The coordinates of point A x1 y1 and coordinates of point B x2 y2। So how could we find the distance between these two points? तो चलिए देखते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ में डेरिवेशन ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिखा है, आप नोटिस कर सकते हैं। दैट इज, अब यहाँ पे लेट पॉइंट A x1 y1 and B and point B x2 y2 are any two points in xy plane। फॉर एग्जांपल ये कोई भी दो पॉइंट्स है xy प्लेन में, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए। अब यहां पे एक कंस्ट्रक्शन में करनी है, दैट इज ड्रॉ segment BP perpendicular to the x-axis and again segment AD which is perpendicular to the segment BP। तो यहां पे हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से आएगी कि पहले आपको B से x-axis पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सपोज दिस वन इज फर्स्ट, और बाद में आपको A से D पे भी एक परपेंडिकुलर BP पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल दिस इज नाउ AD परपेंडिकुलर टू BP एंड BP परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। तो अब आप कंक्लूड कर सकते हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। तो मैं यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, इफ द सेगमेंट इज पैरेलल टू द y axis then every point has x coordinate constant, and if segment is parallel to the x axis then every point on that segment is having y coordinate constant। तो y coordinate constant होगा जबकि AD parallel to the x axis होगा और BD parallel to the y axis है, इसका मतलब x coordinate constant होगा। तो यहां पे हमें मिलते हैं D के कोऑर्डिनेट्स। अब D के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, दैट इज x2, y1। x2, y1, these are the coordinates of point D, because why? AD perpendicular to x axis, so y1 y1, it means y coordinate of A and D is same, and BD parallel to the y axis, therefore x coordinate of B and D is same, that is x2। तो इस तरह से अब यहां पे लिखते हैं, so now segment AD perpendicular to BD। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं that is BD parallel to the y axis, BD parallel to y axis, therefore x coordinate of point D
x coordinate of point D is x2, and next that is now AD parallel to the x axis. AD parallel to x axis, therefore y coordinate of point D is y1. So हमें यहाँ पे मिलता है that is D is x2, y1. D is x2, y1. ये जो तीन पैरेलल बार देख रहे हो आप, इसको is कहा जाता है. D is x2, y1. इसका मतलब D के कोऑर्डिनेट x2, y1 होते हैं. तो अब यहाँ पे D के कोऑर्डिनेट हमें पता है, but we know that how to find the distance of 2 points when the line segment joining these 2 points is parallel to any of the axis. इसका मतलब आप BD का डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो और AD का डिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हो, बिकॉज BD पैरेलल टू द y एक्सिस है और AD पैरेलल टू द x एक्सिस है. और जब लाइन सेगमेंट पैरेलल होता है तब डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में देखा. तो चलिए यहां पे देखते हैं. बट डिस्टेंस AD is equals to the distance AD equal to हम फाइंड कर सकते हैं AD is parallel to the x axis. तो आप इनका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं x2 minus x1, that is x2 minus x1. अब next similarly also distance, अब और यहां पे हम मेंशन भी कर सकते हैं चाहे तो, आपको अगर इन ब्रीफ बताना चाहे तो. नाउ मैं आपको ये भी यहां पे बताना चाहूंगा, that is BD parallel to y axis, therefore we get, और डायरेक्टली भी लिखते हैं, चलो ऐसा ही करिए, that is distance BD is equal to y2 minus y1 because x coordinate is constant, y2 minus y1, and distance AD is equal to x2 minus x1. अब डिस्टेंस AD और डिस्टेंस BD आपको दोनों पता है, लेकिन हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं ट्रायंगल ABD is a right angle triangle. Triangle ABD is right angle triangle, and by using the Pythagoras theorem we can find out now AB. That is now in right triangle ABD, अब right angle triangle ABD में by Pythagoras theorem हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, that is AB square is equal to AD square plus BD square. अब AD square और BD square की यहाँ पे अगर वैल्यू रखें हम, तो यहाँ पे आएगा x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So therefore we can write, this is the value of AB square, therefore we can write AB is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is called distance formula. अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फाइंड कर सकते हो. इसमें से इसका मतलब ये होता है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप if the point to 2 points lies on the x axis y axis, if the line segment joining these 2 points is parallel to any one of the axis, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला. अब यहां पे हमने तीनों केसेस खत्म कर दिए हैं, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन. ठीक है, तो अगर इस कांसेप्ट के बारे में आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं. तो इसके बाद इसके आधार पर, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के आधार पर आपको प्रैक्टिस से 5.1 सॉल्व करना है. उसके लिए हम बढ़ते हैं आगे की वीडियो में. तो तब तक आप वेट करें, कोई भी डाउट हो तो पूछे जरूर.